Excuse me. साइड ओपनिंग डोर्स कर लिया था हमने. आई थिंक सो. यस, ये रह गया था ना. ओके. तो हमने वाइजर डोर एंड साइड ओपनिंग डोर हमने कर लिया था. स्टर्न रैंप वाज व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग. इसका भी डायग्राम आ जाता है आपका स्टर्न रैंप का. Now, stern ramp also functions as a watertight door. पीछे देखो, most of the ships, not most, some of the ships you must have seen the stern ramp, which acts as a watertight door, and is fitted with a rubber seal in a channel around the opening of the hull. The ramps are designed to cope with tidal variations, whether on the quay or whether your berth or a link span में अगर आप है तो. So ये आपका डायग्राम है. अगर डायग्राम आता है फॉर अ स्टर्न रैम्प, देन दिस इज द डायग्राम यू नीड टू मेक. या फिर आप ये वाला भी बना सकते हैं. आइदर ऑफ द टू. आई सजेस्ट दिस वन इज बेटर बिकॉज इसमें कुछ मार्किंग लेबलिंग भी है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर द स्टर्न रैम्प. ऑल राइट. Now, here it says an inner door is to be fitted. Now, the inner door is part of the collision bulkhead. If you remember, मैंने आपको जब collision bulkhead हम कर रहे थे तो मैंने उससे पहले आप उसमें कहा था आपसे कि collision bulkhead जो है, जो main collision bulkhead है, it starts from the double bottom tank up to the uppermost continuous deck, right? Main deck जिसको हम बोलते हैं. Now, यहाँ पे ये जो डोर आपको दिख रहा है, आई विल जस्ट शो इट टू यू इन कलर. ये जो यहाँ पे डोर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द इनर डोर. एंड दिस इनर डोर कैन बी फिटेड. इट इज द दिस ये जो इनर डोर है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड. And it can be fitted above the collision bulkhead. ये जो extension है, inner door, it can be fitted above the collision bulkhead. It can be fitted forward of the collision bulkhead. It can be fitted aft of the collision bulkhead, provided it meets the requirements of the collision bulkhead. So ये जो inner door है, ये collision bulkhead का ही एक part है. Above the freeboard deck, right? From the double bottom tank up to the freeboard deck, या up to the uppermost continuous deck, या up to the main deck, तीनों चीज एक ही चीज है. वहां तक collision bulkhead है. Inner door is an extension of the collision bulkhead, and it can be fitted above the collision bulkhead. It can be fitted forward of the collision bulkhead. It can be fitted aft of the collision bulkhead. But it has to meet the requirements of the collision bulkhead. अब collision bulkhead की क्या requirement है? कहाँ पे होना चाहिए? 0.05 L or 10 meters, whichever is less. 0.05 L या 10 meters, whichever is less, or 0.05 L plus 3 meters, or 0.08 L, whichever is greater. ये रिक्वायरमेंट है कोलिशन बल्कहेड की. और मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. तो फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से ये जो एक्सटेंशन है कोलिशन बल्कहेड का, दैट ऑल्सो हैज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोलिशन बल्कहेड. सो ऐसा नहीं है कि इनर डोर को कहीं पे भी लगा लो.
उसकी भी रिक्वायरमेंट है, एंड द रिक्वायरमेंट्स आर द सेम एज द कोलिशन बल्कहेड, बिकॉज दिस इनर डोर, ये जो यहाँ पे रेड से मैंने मार्क कर रखा है, दिस इनर डोर इज an extension of the collision bulkhead above the waterline. Below the waterline, collision bulkhead. Above the waterline, inner door. ठीक है, so it has to meet the requirements of the collision bulkhead. अब ये जो inner door है, it can be a separate inner door. ये जो ramp है, ramp भी inner door का काम कर सकता है, but not this one. Okay, it is not meeting the requirement of the collision bulkhead. अगर मीट करता है तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन हियर, इस वाली इमेज में ये जो आपको यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ या हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, मैं आपको रेड हाइलाइटर से, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रबर जो काला काला ब्लैक दिख रहा है, ये सील है, एंड ये क्या है, दिस एंटायर पोर्शन ये रैम का काम भी कर रहा है प्लस इनर डोर का काम भी कर रहा है. So a separate inner door can be fitted, or the ramp can also act as an inner door, provided it meets the requirement of the collision bulkhead. Okay, ये जो distance है from here, जो inner door है, ये जो bow doors हैं, ये वाला bow door या दूसरा वाला कोई सा भी bow door है, और inner door के बीच में जो distance है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इतना होना चाहिए कि इन केस देयर इज एनी डैमेज टू द बाउ डोर, कोलिशन हो गई, कुछ भी हो गया, तो नो पार्ट ऑफ द बाउ डोर शुड डैमेज द इनर डोर. अंदर का डोर डैमेज हो गया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा. सो जो डिस्टेंस है बिटवीन द बाउ डोर एंड द इनर डोर, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोलिशन होता है या अगर एनी डैमेज होता है टू द बाउ डोर, नो पार्ट ऑफ द बाउ डोर शुड बी एबल टू डैमेज द इनर डोर. ओके, हाँ जी सर, यहाँ पे ये बल्कहेड कौन सा है? ये कोलिशन बल्कहेड, ये रैंप ही है ना? हाँ, ये रैंप, या यहाँ पे जो इनर डोर है ना, वो एक्सटेंशन है कोलिशन बल्कहेड तो नीचे है, लेकिन ये जो रैंप है, ये जो इनर डोर है, इट इज एक्टिंग लाइक अ एक्सटेंशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड. इट इज ऑल्सो अ कोलिशन बल्कहेड, एक्सटेंशन है कोलिशन बल्कहेड का. चलिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ओके, सो कहाँ थे हम लोग? एन इनर डोर इज टू बी फिटेड. ठीक है, the inner door is part of the collision bulkhead. The inner door need not be fitted directly above the bulkhead below. Which bulkhead? Collision bulkhead. क्योंकि inner door क्या है? It is the part of the collision bulkhead जो नीचे है. So inner door need not be fitted directly above the bulkhead below, provided it is located within the limits specified for the collision bulkhead. So आपका जो inner door है, it is an extension of the collision bulkhead. जो नीचे आप bulkhead below मतलब क्या हुआ? Inner door need not to be fitted directly above the bulkhead below. तो वो जो हम देख रहे थे वो continuous deck है क्या उसका? एक मिनट, हाँ वो continuous deck है, वो continuous deck है आपका. अभी मैं समझा देता हूं आपको, एक मिनट इसको पढ़ लीजिए पहले. इनर डोर हैज नीड नॉट बी फिटेड डायरेक्टली अबव द बल्कहेड बिलो. कौन सा बल्कहेड? कोलिशन बल्कहेड. प्रोवाइडेड इट इज लोकेटेड विद इन द लिमिट्स स्पेसिफाइड फॉर द पोजीशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड. अभी आपको समझा देता हूं डायग्राम. ओके, अ व्हीकल रैंप में बी अरेंज्ड फॉर दिस पर्पस. जो मैंने आपको एक दिखाया था जिसमें रैंप भी है और वही इनर डोर का काम भी कर रहा है. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, a separate inner weathertight door is to be installed as far within the limits specified for the collision bulkhead. So
मैं वापस उस इमेजेस में जा रहा हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और यहाँ पे मैं सारा इरेज कर देता हूँ इसको, राइट। और ये वाली इमेज में भी आपको सारा इरेज कर दिया मैंने। नाउ आई गो बैक टू द सो एन इनर डोर इज टू बी फिटेड। ये अंदर आपको इनर डोर दिख रहा है जो मैंने अभी सर्कल किया, एंड दैट इनर डोर इज फिटेड। दिस इज, ये जो इनर डोर है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड। मतलब इसके नीचे कोलिशन बल्कहेड है और बल्कहेड के ऊपर आपका इनर डोर है। एंड अभी अलग से भी समझा दूंगा आपको डायग्राम बना करके। एक पहले इसको समझ लीजिए, एक इनर डोर है यहाँ पे और यहाँ पे ये रैंप है। बिकॉज द रैंप इज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोलिशन बल्कहेड, इनर डोर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है, इसलिए अ सेपरेट इनर डोर इज टू बी फिटेड। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में यहां पे जो रैंप है वो इनर डोर का भी काम कर रहा है, सो वो यहां पे आके फिट हो जाता है, तो वो इनर डोर का भी काम कर रहा है और रैंप का भी काम कर रहा है। सो यहां पे जो मैंने अभी आपको पढ़ के क्या बताया था, ये वाला पोर्शन पढ़िए। अ व्हीकल रैंप में बी अरेंज्ड फॉर दिस पर्पस एज अप्रोप्रिएट, जो सेकेंड इमेज मैंने दिखाई थी। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, a separate inner weathertight door is to be installed. So a vehicle ramp is to be fitted. यहाँ पर vehicle ramp is fitted. If this is not possible, then a separate inner door is to be fitted. और इस वाले में जो inner door है, it is meeting the requirements of the collision bulkhead, उसकी जो location है. Okay. Now let me find some nice place where I can make a drawing for you. Okay, यहाँ पे दिखाते हैं. I will use let's say blue color. Let's say ये आपका जहाज है, ठीक है, बल्बस पाव को छोड़ देते हैं, और ये है आपकी वाटर लाइन, और ये है आपका फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। आपको इमेज दिखाई दे रही है मेरे को मेरी? यस। ये है आपका मेन डेक। मेन डेक मीन्स द अपर मोस्ट कंटिन्यूस डेक, और ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा वर्टिकल, ये आपका कोलिशन बल्कहेड है, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम, मैं बनाता नहीं हूं जा रहा, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अब हमको इनर डोर बनाना है। तो ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये मेरा इनर डोर है। यू कैन से दैट दिस पार्ट ऑफ द वेसल इज योर बाउ डोर। ये वाटर लाइन से ऊपर ही रहेगा। सॉरी, एक मिनट। राइट, तो ये मेन डेक है आपका, और यहां से लेकर के आपका ये जो पार्ट है ग्रीन में मैं दिखा रहा हूं, दिस मच ऑफ योर डोर ये लिफ्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। इतना पार्ट आपका लिफ्ट हो जाएगा, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर बाउ डोर का। सो दिस मच पोर्शन ऑफ योर वेसल वो लिफ्ट हो रहा है, sideways opener. Now inner door is to be fitted. Now inner door जो है वो ये है आपका, रेड में दिखा रहा हूं मैं आपको। This is your inner door. An inner door is an extension of the collision bulkhead. जो ब्लू वाला है वो collision bulkhead है, सी भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये है ID inner door. It is an extension of the collision bulkhead. It need not be fitted directly above the bulkhead below. ये जो आपका डोर है, it need not be fitted directly above the bulkhead below. Which is the bulkhead below? The collision bulkhead. It can be fitted forward like this. It can be fitted aft, as long as it meets the requirement of the collision bulkhead. कोलिशन बल्कहेड की रिक्वायरमेंट क्या है सर?
कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने एरो बना रखा है येलो में, वो क्या होना चाहिए? 0.05 L और 10 मीटर्स, विच एवर इज लेस, और 0.08 L, ये दूसरा वाला जो है, ये मैं आपको मजेंटा कलर में दिखा देता हूँ। ये जो दूसरा वाला है, ये पॉइंट मजेंटा कलर भी क्लियर नहीं आ रहा है, मैं एक मिनट व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ। चलिए, ये जो है, अरे यार, ये जो व्हाइट से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये 0.08 L है, विच एवर इज ग्रेटर। कोलिशन बल्कहेड की यही तो रिक्वायरमेंट है ना, दैट 0.05 L और 10 मीटर्स, विच एवर इज लेस। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर अलाउ करता है, देन 0.05 L plus 3 meters or 0.08 L, whichever gives the least, whichever is larger, whichever is greater. So your collision bulkhead, वो तो नीचे फिट कर दिया आपने, और वो जो एक्सटेंशन है, it can be fitted above the collision bulkhead, it can be fitted forward of the collision bulkhead, it can be fitted aft of the collision bulkhead. It need not be fitted directly above the collision bulkhead below. It need not be. इसका मतलब, अगर चाहो तो आप उसके कोलिशन बल्कहेड के ऊपर भी लगा सकते हो, उसके आगे भी लगा सकते हो, उसके पीछे भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड वो जो रिक्वायरमेंट्स है कोलिशन बल्कहेड की, वो मीट हो जाए। अब आया समझ सर? यस सर। सो ये जो एक्सटेंशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनर डोर की, ये इनर डोर की रिक्वायरमेंट है। It is an extension of the collision bulkhead. Collision bulkhead is watertight. जो एक्सटेंशन है, इनर डोर है, वो weathertight है। Why is it weathertight? Because it is above the water line. लोड वाटर लाइन के ऊपर है, फ्री बोर्ड में है। ओके, सो और वो कह रहा है कि उसके लिए an inner door is to be fitted. Inner door is to be a part of the collision bulkhead. मतलब collision bulkhead का ही एक पार्ट है inner door. The inner door need not be fitted directly above the bulkhead below. नीचे जो collision bulkhead है, उसके ऊपर लगाना जरूरी नहीं है inner door. उसके आगे भी हो सकता है, उसके पीछे भी हो सकता है, provided it is located within the limits specified for the position of the collision bulkhead. तो आप चाहो तो डायरेक्टली उसके ऊपर भी लगा सकते हो, but it is not a must. It is a part of the collision bulkhead. It is the extension of the collision bulkhead, inner door, जो रेड वाला है. It need not be fitted directly above the bulkhead below. नीचे bulkhead कौन सा है? Collision bulkhead. It need not be fitted directly above it. It can be fitted forward of it. It can be fitted aft of it, provided meets the requirement for the location of the collision bulkhead. Why? Because it is a part of the collision bulkhead. Inner door is a part of the collision bulkhead. So उसकी भी requirement वही है. Clear है सर? Yes, sir. Okay. A vehicle ramp may be arranged for this. जो मैंने एक इमेज दिखाई थी जहां पर वो इनर डोर है, वो रैम्प का काम भी कर रहा है। अब व्हीकल रैम्प अगर वो पॉसिबल है तो ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सेपरेट इनर डोर होगा। तो एक इमेज मैंने आपको दिखाई थी जिसमें इनर डोर भी था, उसमें रैम्प भी था। दूसरी इमेज मैंने दिखाई जिसमें इनर डोर ही रैम्प का काम कर रहा है।
bow doors are to be fitted above the freeboard deck. अब जो bow doors है आपके, they have to be fitted above the freeboard deck. नहीं तो जब अगर फ्रीबोर्ड डेक के नीचे होंगे तो वहां तो पानी भर जाएगा जैसे ही आप खोलेंगे उसको. हाउ विल पीपल वर्क? इट इज जस्ट लाइक योर शेल डोर फॉर द पायलट. शेल डोर हैज टू बी अबव द फ्रीबोर्ड डेक, नहीं तो पायलट कैसे आएगा? शेल डोर अगर पानी के नीचे हुआ तब तो पायलट विल हैव टू बोर्ड बाय सबमरीन. तब तो ठीक है. अगर सबमरीन से पायलट आ रहा है तो पायलट का जो कंटेनर शिप्स में जो शेल डोर होता है जहां से पायलट अंदर आता है, it has to be below the water line. But ऐसा होता नहीं है. It is above the freeboard deck. तभी तो पायलट आएगा ऊपर by boat. And it is weathertight. ठीक है. उसमें अलार्म सिस्टम्स होते हैं. गुड. नहीं तो अगर खुला रह गया फॉर किसी वजह से तो आपका पूरा पैसेज वे भर जाएगा पानी से. Similarly, bow door are to be situated above the freeboard deck. A watertight recess in the freeboard deck located forward of the collision bulkhead and above the deepest water line fitted for arrangement of ramps. Deepest water line कौन सी होगी? जो मैक्सिमम आपका लोड लाइन होता है समर का, अगर विंटर में है तो विंटर का, उसके ऊपर होगा. Bow doors are so fitted so as to ensure tightness consistent with the operational conditions and to give effective protection to inner doors. मतलब bow doors जो हैं वो ऐसे fitted होने चाहिए. Inner doors forming part of the collision bulkhead. अब inner doors हमने अभी बात की थी. It is part of the collision bulkhead are to be weather tight. So inner door जो है आपका वो weather tight है, water tight नहीं होता है. Over the full height of the cargo, मतलब उसके ऊपर जो भी है उसके पीछे वो सब. एंड क्या रहते हैं? फिक्स्ड सीलिंग सपोर्ट्स रहती है ऑन द आउट साइड ऑफ द डोर्स. वो रबर सीलिंग जो आपने काला काला देखा था, दैट वाज द फिक्स्ड सीलिंग सपोर्ट. तभी जाके वो वेदर टाइट रहेगा. नाउ bow doors. Collision bulkhead is not supposed to be watertight. The inner door. Collision bulkhead sir. Collision bulkhead तो water tight है सर. तो सर ये door is a part of collision bulkhead only, so why it is not watertight, instead it's weathertight? Inner door is a part extension of the collision bulkhead. An inner door is fitted above the freeboard deck, not below the freeboard deck. Freeboard deck के नीचे अगर होगा तो watertight रहेगा. Collision bulkhead is fitted below the freeboard deck. Inner door is fitted above the freeboard deck. Above the freeboard deck weathertight होता है. आपका hatch cover is weathertight. Your booby hatch entrances are weathertight. Your pilot boarding का जो shell door होता है, that is weathertight. It is above the freeboard deck. Okay sir. Sir, but वैसे collision bulkhead उसलिए नहीं होता था कि collision हो जाए तो पानी अंदर ना आए. नहीं, वो तो collision bulkhead है उसके लिए. वो तो collision bulkhead है. Right? What we are talking about is now the inner door, which is an extension of the collision bulkhead. और वो extension जो है, it is weathertight. Once again, let me show this. ये जो bow door है ना, ये क्या लिखा है? Bow door is to be situated above the freeboard deck. ओके, चलिए मैं एक इमेज दिखाता हूं आपको पहले. ये बाउ डोर है सर. ये क्या है? इज इट अबव द फ्रीबोर्ड डेक और बिलो द फ्रीबोर्ड डेक? Above sir. अबव है ना. अगर वो बिलो द फ्रीबोर्ड डेक होता तो क्या वो इस तरह से खोल पाते हैं इसको?
नहीं ना, नहीं तो सारा पानी भर जाता ना अंदर। अब ये बाव डोर खुलेगा, बाव डोर खुलने के बाद रैंप खुलेगा, फिर व्हीकल्स मूव करेंगी इन एंड आउट। सो दिस बाव डोर ऑल्सो इज वेदर टाइट, नॉट वाटर टाइट। ओके, अभी 1 मिनट और देखते हैं आगे चल के। So bow doors are to be situated above the freeboard deck. Okay, now let's come to this inner door का मैंने आपको बता दिया. Again, inner doors forming part of the collision are weather tight. Inner doors are to be weather tight. Okay, अब bow door and inner door अभी थोड़ा सा और देखेंगे आगे, क्लियर हो जाएगा आपका. Bow door and inner doors are to be arranged so as to prevent the possibility of the bow door causing structural damage to the inner door or to the collision bulkhead in case of damage or detachment of the bow door. अब ये जो bow door है, जो साइडवेज खुलता है या वाइजर वाला जो डोर है और जो इनर डोर है, उनका अरेंजमेंट ऐसे होना है कि अगर आपका बाव डोर डैमेज हो जाता है, नो पार्ट ऑफ द बाव डोर, right, of the bow door causing structural damage to the inner door in case of detachment of the bow door. So अगर bow door detach हो गया या bow door टूट गया, no part of the bow door should cause structural damage to the inner door. इसलिए bow door and inner door उनको ऐसे अरेंज करना है कि in case to prevent the possibility of the bow door causing structural damage to the inner door. So bow door और inner door का अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि in case of collision या in case of damage to the bow door या in case of detachment of the bow door, वो bow door अंदर जा करके जो आपका इनर डोर है उसको डैमेज ना कर पाए. ओके, स्कैंटलिंग ऑफ बाव डोर्स इसको छोड़ देते हैं हम. ये आपका आता नहीं है. सिक्योरिंग ऑफ बाव डोर्स ये आता है आपका. मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर वाइजर डोर्स you have 2 securing devices to be provided at the lower of the door, each capable of providing a full thrust reaction force required to prevent opening of the door. अभी मैं दिखा देता हूँ ये क्या है. 2 devices, securing devices has to be provided at the lower part of the door. And for side opening doors हमें आपका क्या होता है, thrust bearing होती है. It will not allow one door to move over the other door due to unsymmetrical water pressure. So ये आपकी thrust bearing है. This is for side doors, मतलब side opening doors. और bow door के लिए मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ये डायग्राम है. This is your side lock, this is your bottom lock. This is the securing arrangement. So securing arrangement का भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, लॉकिंग अरेंजमेंट या सिक्योरिंग, वाइजर डोर का ये है. बाव डोर का वाइजर डोर का डायग्राम बनाने को आता है तो यही है. लॉकिंग अरेंजमेंट या सिक्योरिंग अरेंजमेंट आता है तो भी ये है. यू कैन मार्क द साइड लॉक एंड द बॉटम लॉक. एंड अगर दूसरा आता है साइड ओपनिंग डोर का तो ये थ्रस्ट बेयरिंग है. दिस वन, दिस इज द डायग्राम फॉर द लॉकिंग अरेंजमेंट फॉर द साइड ओपनिंग डोर्स. और आंसर ये है, सिक्योरिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ बाउ डोर्स. ठीक है, सिक्योरिंग कैसे चाहिए उसकी. For visor doors, 2 security devices at the lower part. For side opening doors, thrust bearing has to be provided in way of the girder ends. ये इसका आंसर है, ये डायग्राम है. Now, और ये भी आप उसके आंसर में लिख सकते हैं. ओपनिंग क्लोजिंग कैसी होती है, इंडिकेशन आ जाता है, ओपन है, क्लोज है, अलार्म सिस्टम्स आ जाते हैं.
ना एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता था इसमें. All right. Now, between the bow door and the inner door, a water leakage detection system, audible alarm, and television surveillance (CCTV) उसके अंदर रहता है, which is accessible from the navigation bridge or from the engine room. कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं. So your bow door is actually a weathertight, and in case there is some seepage of water inside the area, bow door और inner door के बीच में, तो वहां पे bilges है. And when the water level in the bilges reaches 50 centimeters, half a meter, or a level which is set lower than that, अगर आप 30 centimeters रखोगे तो 30 centimeters पे अलार्म आ जाएगा. Otherwise 50 centimeters, whichever is least. अगर आपने 1 मीटर रखा तो 50 centimeters पे अलार्म आ जाएगा. So वो क्यों आ रहा है अलार्म? Because it is a weathertight door. So in case of bad weather, rolling, pitching, थोड़ा सा कहीं से लूज हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी अंदर सीप कर रहा है, लीक कर जाता है अंदर. So bilges are there, and when the bilges, the level of water reaches 50 centimeters or a lower level which is set by you, an alarm system comes on the bridge. Navigation bridge पर alarm आ जाएगा. Pumps are fitted, so between the bow door and the inner door, CCTV system is to be fitted, monitor from the navigation bridge or from the engine room. अब वो क्या क्या मॉनिटर करता है? वो हाइड्रोलिक सिस्टम को जो लॉकिंग अरेंजमेंट है उसको भी मॉनिटर कर रहा है. यू कैन सी इट ऑन द ब्रिज कि आपका जो लॉक है वो इट इज इन प्लेस. ड्रेनेज सिस्टम भी है. ओह शिट गाइस, कैन यू रीड इट? बिटवीन द डोर वाली स्लाइड खुली हुई है. हाँ वही. आपको क्या क्या पढ़ पा रहे हैं उसमें? Between the door and the inner door, a television surveillance system should be fitted with a monitor on the navigation. अच्छा ओके. चलो यार मुझे 1 मिनट दो. आज बहुत टाइम के बाद मेरा सिस्टम फिर से, आई थिंक व्हेन आई एम यूजिंग टच स्क्रीन टू मच तब ये हो जा रहा है. एनीवे मैं जरा रीस्टार्ट करके आता हूँ कंप्यूटर. 2 मिनट दीजिए सर. ओके स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? Yes. Okay, so between the bow door and the inner door, television surveillance system is to be fitted. वो मॉनिटर कर सकते हो आप ब्रिज से या शिप कंट्रोल सेंटर से. ड्रेनेज सिस्टम इज ऑल्सो फिटेड बिटवीन द बाउ डोर एंड द रैम्प या इनर डोर अगर रैम्प नहीं है तो. Equipped with audible alarm function to the navigation being set up if the water level bilges में अगर increase हो जाती है 50 centimeters or a level which you have set whichever is less. राइट तो वो वहां पे स्टार्ट हो जाएगा आपका एंड ऑटोमेटिकली द पंप विल स्टार्ट पंपिंग आउट द सिस्टम. सो ये आपका बाउडोर का है. सो दिस फिनिशेस योर टॉपिक. ये आपके कुछ टर्न के खाली इमेजेस डाल रखी है.
This is how the strengthening is done for the stern ramps. All pipes, hydraulic pipes, strengthening. And this finishes with the topic. These are the questions. Okay, anything else that you would like to cover up? I think ESP code अभी हुआ नहीं है ना आपके साथ? Month 1 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, Bulkheads foreign construction complete. हाँ जी. Yes, complete, sir. Okay. Month 2 welding HSSC ESP code. So ESP code आप कर रहे हैं, ESP बाकी है. Okay. Next week में हम इसको कर लेंगे. Month 3 corrosion watertight doors. ये हमारा खत्म हो गया आज, राइट. सो ESP कोड रह गया. सो नेक्स्ट वीक आई विल टेक वन क्लास, उस पर ESP कर लेंगे, 2 क्लासेस ले लेंगे, फिर रिविजन असाइनमेंट जो भी करना है. एंड देन आई हैव फिनिश्ड माय सिलेबस विथ यू फॉर मई एंड जून. कंप्लीट सिलेबस आपका खत्म हो गया, और जुलाई में फिर एक एक क्लास लेकर के कोई ना कोई टॉपिक रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, असेसमेंट कर लेंगे, आप ही लोग के लिए अच्छा है. Okay, so this month we will do all. Now we have to wait for the next batch to come, that is in August. तब तक आपके साथ फिर रिवीजन चलता रहेगा. मई बैच निकल जाएगा अगस्त में, एंड देन वी स्टार्ट. आपके साथ सारा कुछ हो चुका है अभी. ठीक है सर? ओके सर. चलिए फिर ब्रेक ले लीजिए. अभी ब्रेक क्या ले लीजिए, अब छुट्टी कीजिए आज के लिए.